آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ ماحولیاتی آلودگی پوری دنیا کے لیے ہے خطرہ، گلوبل وارمنگ کو ٹالنے شجرکاری پر دیا جانے لگا ہے زور۔ اورنگ آباد ڈویژن میں بھی شروع کی گئی ایک پیڑ ماں کے نام مہم، علاقائی کمشنر جتیندر پاپڑ کے ہاتھوں کیا گیا شاندار افتتاح۔ DIO کی جانب سے صحافیوں کے لیے تربیتی ورکشاپ منعقد، ڈویژنل کمشنر اور ضلع کلکٹر کے علاوہ دیگر ماہرین نے صحافیوں کے لیے جاری کی گئی مختلف اسکیمات سے متعلق کی رہنمائی۔ عوامی بھلائی کے لیے انتظامیہ اور صحافیوں کو مل جل کر کام کرنے کا دیا گیا مشورہ۔ پیٹھن روڈ پر سڑک کی تعمیر کے لیے کھدائی کے دوران JCB کی زد میں آ جانے سے پھر پھوٹی 1200 ملی میٹر قطر والی پائپ لائن، شہریان کے حصے کا ہزاروں گیلن پانی یوں ہی راستے پر بہہ کر ہو گیا ضائع، شہر میں سپلائی متاثر ہونے کا امکان، شہریان میں بے چینی۔ اور چڈی بنین گینگ کے خلاف مہا وکاس آگھاڑی کے اراکین اسمبلی و کونسل نے کیا ویدھان بھون کی سیڑھیوں پر ٹھیا آندولن، لٹیری گینگ کے خلاف لگائے جم کر نعرے، ایک بار پھر لگایا گیا 50 کھوکے ایک دم اوکے کا نعرہ۔ خبریں تفصیل سے۔ اورنگ آباد ڈویژن میں ایک پیڑ ماں کے نام نامی پروگرام شروع کیا گیا ہے، جس کا افتتاح ڈویژنل کمشنر جتیندر پاپڑکر کے ہاتھوں کیا گیا۔ واضح ہے کہ شعبہ جنگلات، سرسوتی بھون ایجوکیشن سوسائٹی اور ضلع پریشد دفتر کے شعبہ تعلیمات کے اشتراک سے اورنگ آباد ڈویژن میں ایک پیڑ ماں کے نام یا ایک طالب علم ایک درخت نامی پروگرام شروع کیا گیا، جس کے لیے ڈویژن میں 10 کروڑ پودے لگانے کا ٹارگٹ مقرر کیا گیا ہے۔ اس پروگرام کا افتتاح ڈویژنل کمشنر جتیندر پاپڑکر کے ہاتھوں کیا گیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اساتذہ کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے اسکولوں میں زیر تعلیم ہر بچے کو یہ ترغیب دیں کہ وہ کم از کم ایک پودا لگائیں اور اس کی نگہداشت کریں۔ SB اسکول میں منعقدہ اس تقریب میں ضلع کلکٹر دلیپ سوامی، ضلع پریشد کے CEO انکت، ریجنل فارسٹ کنزرویٹر پرمود چندر لاکرا، ڈپٹی ڈائریکٹر آف ایجوکیشن پرکاش مکند، ڈپٹی فارسٹ کنزرویٹر سورنا مانے، علاقائی فارسٹ آفیسر کیرتی جمادار، مڈل ایجوکیشن آفیسر اشونی لاٹکر، پرائمری ایجوکیشن آفیسر جے شری چوہان، ارون شندے، SB ایجوکیشن سوسائٹی کے صدر ایڈوکیٹ دنیش وکیل، سیکریٹری شری رنگ دیش پانڈے، اسکول کمیٹی کے صدر گیان پرکاش مودانی، ڈاکٹر الہاس شیورکر اور دیگر معزز شخصیات مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھیں۔ ضلع کلکٹر نے اپنے خطاب میں کہا کہ اورنگ آباد ضلع کے 10 لاکھ طلباء اس شجرکاری مہم میں حصہ لیں گے۔ اس مہم کے تحت ہر گرام پنچایت میں 100 پودے اور ہر شمشان بھومی میں 25 پودے لگائے جائیں گے۔ پروگرام میں شریک تمام طلباء میں ایک ایک پودے کی قلم تقسیم کی گئی اور ان سے کہا گیا کہ وہ اس پودے کو اپنے مکان کے احاطے میں یا میدان میں جہاں کہیں بھی جگہ میسر آ جائے وہاں اپنی ماں کے نام سے لگائیں اور اس کی نگہداشت کریں۔ پروگرام کی نظامت روپالی پاٹل نے کی، جبکہ پروگرام کو کامیاب بنانے میں تدریسی اور غیر تدریسی عملے نے اہم رول ادا کیا۔ شیو سینا شندے گروپ کے بانی صدر ایکناتھ شندے کی قیادت پر اعتماد کرتے ہوئے اورنگ آباد ضلع کے کئی لیڈروں نے MLA پردیپ جیسوال کی رہنمائی میں ممبئی میں جا کر شیو سینا شندے گروپ میں شمولیت اختیار کر لی۔ ناظرین، لوکل باڈیز انتخابات کا بگل بجتے ہی سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں اور کئی ایسے قائدین ہیں جو ضلع پریشد، میونسپل کارپوریشن اور دیگر لوکل باڈیز کے انتخابات میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے بہتر مستقبل کے لیے متبادل ڈھونڈنے لگے ہیں اور کچھ ادھر تو کچھ ادھر سیاسی قائدین کی توڑ پھوڑ کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ اورنگ آباد ضلع کے کئی قائدین نے MLA پردیپ جیسوال کی رہنمائی میں ممبئی جا کر نائب وزیر اعلیٰ وہ شیو سینا شندے گروپ کے بانی ایکناتھ شندے کی موجودگی میں ان کی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس موقع پر پارٹی کے سیکریٹری رام ریپالے، سنجے مورے، دھرمویر ادھیاتمک سینا کے چیف اکشے مہاراج بھونسلے، مہیش نانا سیٹھ اور مہیش چیوٹے بھی موجود تھے۔
شیندرا MIDC علاقے میں ٹرک پارکنگ کے لیے مختص ایک زمین MIDC ڈپارٹمنٹ کے افسران نے ایک خانگی کمپنی کو دے دی۔ یہ الزام مہاراشٹرا ودھان پریشد کے اپوزیشن لیڈر अंबादास दानवे ने असेंब्ली सेशन में लगाया। सभापती महोदय, हा पार्किंगचा विषय सगळ्याच MIDCचा महत्त्वाचा आहे। संभाजीनगरात शेंद्रा औद्योगिक वसाहत आहे, पार्किंगचा प्लॉट होता, MIDC ने एका खाजगी कंपनीला दिला। मंत्री महोदय, मंत्री महोदय, MIDC ने एका खाजगी कंपनीला प्लॉट देऊन टाकला पार्किंगची गरज नाही म्हणून। हा प्लॉट वापस घेणार का? कारण कॅमियो कंपनी एका मंत्र्याच्या नातेवाईकाची आहे। आधा प्रश्न है आपल्या मार्फत। मुआशरे में खुशगवार तब्दीलियां लाने और आवाम को उम्दा सहूलतें फराहम करवाने के लिए इंतज़ामिया और सहाफ़ियों के दरमियान तालमेल होना ज़रूरी है। इन ख्यालात का इजहार इलाक़ाई कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर ने किया। वो सहाफ़ियों की तरबियत के लिए मुनक़दा एक वर्कशॉप से मुखातिब थे। वाज़ेह है कि ज़िला कलेक्टर ऑफिस के DPDC मीटिंग हॉल में डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस की जानिब से सहाफ़ियों के लिए एक तरबियती वर्कशॉप मुनक़िद किया गया था, जिसमें ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी, औरंगाबाद डिवीज़न की कोऑप कमेटी के सदर डॉक्टर माधव सावरगावे, MGM यूनिवर्सिटी की जर्नलिज़म डिपार्टमेंट की HOD डॉक्टर रेखा शेलके, DIO डॉक्टर मिलिंद दुसाने, दीपक रंगारी, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन साइंस सेंटर के शरद दीवेकर मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। वर्कशॉप के आगाज़ से कबल मारूफ सहाफ़ी बाल शास्त्री जाम्भेकर की तस्वीर पर फूल चढ़ाए गए। बाद अज़ा दीप जलाकर वर्कशॉप का आगाज़ किया गया। वर्कशॉप से खिताब करते हुए डिविजनल कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर ने कहा कि बदलते हालात के पेश नज़र खबरों का अंदाज भी बदल गया है। जिस तरह से अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर खबरें दिखाई जाती हैं, वो सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली खबरों से बहुत अलग होती हैं और दोनों का मवाजना करने पर फ़र्क साफ तौर पर समझा जा सकता है, जिसके सबब असल हकीकत समझने में आसानी हो जाती है। सहाफ़ी हज़रात इंतज़ामिया की गलतियाँ उजागर करते हैं। जदीद तकनीकी तालीम इंतज़ामिया को मज़ीद मुस्तहकम और फ़आल बनाने के लिए नहायत ज़रूरी है। सहाफ़ियों के लिए भी ज़रूरी है कि उन्हें क़ानून की समझ, ज़बान के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ मालूमात होना नहायत ज़रूरी है। इंतज़ामिया और सहाफ़ियों के दरमियान कोऑर्डिनेशन हो तो मुआशरे में न सिर्फ खुशगवार तब्दीलियाँ लाई जा सकती हैं, बल्कि मुआशरे की तरक्की की रफ्तार में भी इजाफ़ा मुमकिन है। जबकि ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने कहा कि मुआशरे को आईना दिखाने का काम मीडिया करती है। जदीद दौर के तकाज़ों को समझते हुए सहाफ़ियों को भी खुद में तब्दीलियाँ लाना ज़रूरी है। मुकाबला आबराई के इस दौर में ख़ुद को साबित करना एक बड़ा चैलेंज है, जिसके लिए सहाफ़ियों को अपने लिए ज़ाब्ते अखलाक बनाकर उस पर अमल पैरा होना चाहिए। जबकि डॉक्टर माधव सावरगावे ने कहा कि सहाफ़ियों को चाहिए कि वो ख़ुद की ज़िम्मेदारियाँ बखूबी निभाएँ और हकीकत पर मबनी ख़बरें मंज़र आम पर लाएँ। इसी तरह इंतज़ामिया को भी चाहिए कि वो सहाफ़ियों के मसाइल पर तवज्जो देकर उन्हें हल करें। प्रोग्राम का तारुफ और शुक्रिया की रस्म डॉक्टर मिलिंद दुसाने ने अदा की, जबकि निज़ामत डॉक्टर प्रभु गोरे ने की। आइंदा लोकल बॉडीज़ इंतखाबात के पेश नज़र कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के ओहदेदारान व वर्कर्स की रहनुमाई के लिए एक वर्कशॉप गांधी भवन में आज रखा गया। शाहगंज इलाके में मौजूद गांधी भवन में मुनक़दा इस वर्कशॉप में कांग्रेस के शहर सदर शेख यूसुफ, माइनॉरिटी सेल के सदर शेख अनीस, शहर सदर मोइन इनामदार, सीनियर कायद डॉक्टर अरुण शीरसाट, रियासती नायब सदर इब्राहिम पठान, डॉक्टर नीलेश अम्बे वाड़ीकर और दीगर कायदीन ने पार्टी वर्कर्स की रहनुमाई की। इस वर्कशॉप के बाद कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी सेल के कौमी रहनुमा वजाहत मिर्ज़ा ने सहाफ़ियों से मुलाकात की और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उनसे खुलकर गुफ्तगू की। हम चाहते हैं कि जो लोकसभा और विधानसभा में जिस तरह का लोकसभा में तो बहुत अच्छा निकाल आया महाराष्ट्र में, विधानसभा में बदकिस्मती से हम नहीं जीत पाए। कार्यकर्ताओं से सब चर्चा करके संगठन को कैसे मजबूत किया जा सकता है, इसकी समीक्षा करने आज हम यह मेड़ावा ले रहे हैं। इसके बाद में हमारे जितने भी जिले के पदाधिकारी है उनसे 1-to-1 बात भी करने वाले। अल्पसंख्यक समाज को जोड़ने के लिए कोई बहुत से प्रोग्राम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से और ऑल इंडिया माइनॉरिटी कांग्रेस कमेटी की तरफ से आदरणीय इमरान प्रतापगढ़ जी के अध्यक्षता में उसी के बारे में उसको आगे कैसे हम अमली जामा पहना सकते, किस तरह से उसको हम लोगों तक पहुंचा सकते, इसके लिए हम आज चर्चा करने के लिए पैठन रोड पर चीतेगांव से करीब
रास्ते के तामीरी काम के लिए खुदाई के दौरान 1200 मिलीमीटर खुतर वाली पाइपलाइन जेसीबी की जद में आ गई, जिसके सबब ये पाइपलाइन फूट गई और शहरियान के हिस्से का हज़ारों गैलन पानी यूं ही सड़क पर बहकर ज़ाय हो गया। नाजरीन, पैठन रोड पर न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के अलावा रास्ते के तामीरी काम भी जारी हैं, मगर मुतालिका ठेकेदारों की लापरवाहियों के सबब बार बार जेसीबी की टक्कर से शहर को पानी फराहम करने वाली पाइपलाइनों के फूटने का सिलसिला जारी है, जिसका खमियाजा शहरियान को ही भुगतना पड़ रहा है। इस मरतबा भी चीतेगांव इलाके में रास्ते के तामीरी काम के लिए जेसीबी की मदद से खुदाई जारी थी कि अचानक वहां से गुजर रही 1200 मिलीमीटर खुतर वाली पाइपलाइन जेसीबी की जद में आ गई और पानी यूं ही सड़क पर बहकर ज़ाय हो गया। पानी का जोर इतना था कि 40 फीट ऊंचाई तक पानी की एक चादर सी बन गई थी, जिसे देखने के लिए वहां अवाम की भीड़ इकट्ठा हो गई। चारों तरफ पानी ही पानी था, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी जाम हो गया और दोनों ही जानिब गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। गो के म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने इत्तला मिलते ही वाटर सप्लाई रोक दी और मरम्मत का काम शुरू करवाया, जिसकी वजह से एक बार फिर शहर का सप्लाई निज़ाम बिगड़ जाएगा और शहरियान पानी से महरूम हो जाएंगे और गैप में इजाफा हो जाएगा। रियासत महाराष्ट्र में चड्डी बनियन गैंग ने लूट मचा रखी है। इस तरह का संगीन इल्ज़ाम लगाते हुए महाविकास आघाड़ी के अराकीन असेंबली और अराकीन काउंसिल ने महाराष्ट्र विधान भवन की सीढ़ियों पर ज़ोरदार एहतजाज किया। मज़ाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए चड्डी बनियन गैंग रियासती अवाम के पैसों पर डाका डाल रही है। आम शहरियों के साथ मारपीट करके चड्डी बनियन पर तोहम परस्ती फैलाने वाले होम हवन करते हैं, जिसकी मजम्मत में ये एहतजाज किया गया। ये इल्ज़ाम विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने लगाया। 50 खोके एकदम ओके, चड्डी बनियन गैंग हाय हाय, महाराष्ट्र को लूटने वालों का धिक्कार हो, दरोड़े खोर चड्डी बनियन गैंग चा धिक्कार असो। इस तरह के जोरदार नारों से विधान भवन का इलाका गूंज उठा था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पोते और रिपब्लिकन सेना के बानी सदर आनंदराज अम्बेडकर ने आइंदा लोकल बॉडीज़ इंतखाबात शिवसेना शिंदे ग्रुप के साथ मिलकर लड़ने का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि बौद्ध समाज की हमागिर तरक्की और हुकूमत में नुमाइंदगी के लिए अम्बेडकरी समाज की मुख्तलिफ सियासी जमातें और समाजी तंजीमें काम कर रही हैं। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के वारिसीन ने भी मुख्तलिफ सियासी जमातें बना रखी हैं, जिनमें से एक रिपब्लिकन सेना के नाम से जानी जाती है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पोते आनंदराज अम्बेडकर ने कायम कर रखी है। पार्टी के सरबराह आनंदराज अम्बेडकर ने आइंदा लोकल बॉडीज़ इंतखाबात में शिवसेना शिंदे ग्रुप के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। अब देखना यह है कि इस इंतखाबी समझौते का दोनों ही सियासी जमातों को कितना फ़ायदा मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज या इथे महाराष्ट्रामध्ये खरं म्हणजे ही जी युती आहे ती आजची नाही, ही बाबासाहेबांपासून प्रबोधनकार ठाकरेंपासून ही सुरुवात झालेली युती आहे आणि आज खऱ्या अर्थानं महाराष्ट्रामध्ये राजकीय आणि सामाजिक परिवर्तन घडवण्यासाठी म्हणून आम्ही दोन्ही कार्यकर्ते, मी मुद्दामून एकनाथरावांचा मी कार्यकर्ता म्हणून उल्लेख करतोय, कारण त्यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या काळात सुद्धा ते मुख्यमंत्री पदी होते म्हणून असं वागले नाही, तर ते खऱ्या अर्थानं कार्यकर्ता म्हणून प्रत्येक तळागाळाच्या माणसाच्या सुखदुःखाशी एकरूप होण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला आणि अशा या कार्यकर्त्याबरोबर या देशामधला आणि महाराष्ट्रातला असणारा प्रचंड मोठा आंबेडकरी समाज आहे, जो आजपर्यंत अनेक वर्ष रस्त्यावरची लढाई लढत आला, परंतु कार्यकर्त्याला आतापर्यंत काही मिळालं नाही। तर या कार्यकर्त्याला या ज्या सध्याच्या होणाऱ्या स्थानिक
इलेक्शन्स मध्ये कुठेतरी आंबेडकरी कार्यकर्त्याला सुद्धा सत्तेचा लाभ व्हावा यासाठी म्हणून आम्ही दोघांनी एकत्र येण्याचं ठरवलं आणि आज मला आनंद वाटतोय की एवढ्या मोठ्या संख्येने आज कार्यकर्ते आलेत आणि मला पूर्ण खात्री आहे की याच्यामुळे या महाराष्ट्रामधलं हे संपूर्ण सामाजिक आणि राजकीय जीवन ढवळून निघाल्याशिवाय राहणार नाही। आणि एक प्रकारे खरं म्हणजे काही जण मला असं म्हणतील की त्यांचे विचार आणि आमचे विचार, तर पहिल्यांदा मी सांगतो की या देशामधला प्रत्येक माणूस हा बाबासाहेबांच्या विचार चालतो, त्याच्या घटनेवरती चालतो आणि त्यामुळं त्यांच्या आणि आमच्या विचारात काही वेगळेपण असण्याचा प्रश्न नाही। आणि त्याच्या पलीकडे जाऊन सांगतो, मुख्यमंत्री पदाच्या काळामध्ये मागच्या वर्षी त्यांनी बौद्ध धर्मातलं अत्यंत महत्वाचं म्हणजे वर्षावास, त्यावेळेस खास 50 आमच्या भंतेजींना बोलून त्या मुख्यमंत्र्यांच्या वरच्या निवासस्थानी त्यांचं अत्यंत चांगल्या पद्धतीने भोजनदान दिलं। जिला जालना में नानाजी देशमुख एग्रीकल्चर संजीवनी स्कीम में 200 करोड़ रुपयों से जायद का घपला हुआ है। ये संगीन इल्ज़ाम कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद सुरेश गौली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया। कांग्रेस पार्टी के लीडर सुरेश गौली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये इल्ज़ाम लगाया कि ज़िला जालना में नानाजी देशमुख एग्रीकल्चर संजीवनी स्कीम में 200 करोड़ रुपयों से जायद का घपला ज़िले की डिप्टी डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर शीतल चौहान ने किया है। उन्होंने मजीद कहा कि शीतल चौहान ने अपने ओहदे और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए शेडनेट, माइक्रो इरिगेशन और तुषार सिंचन स्कीमात में सप्लायर के साथ मिली भगत करके करोड़ों रुपयों का घपला किया है। सुरेश गौली का कहना है कि शीतल चौहान ने बोगस बिल तैयार करके करोड़ों रुपयों का हुकूमत को चूना लगाया है। इस मामले की जांच के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई थी, लेकिन 1.5 साल का एक लंबा अरसा गुजर जाने के बाद भी अब तक जांच मुकम्मल नहीं हुई है, जिससे ये साबित होता है कि करोड़ों रुपए के इस स्कैंडल को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि खातियों के खिलाफ फौजदारी मुकदमात चलाए जाएं। 1000 कोटीचा प्रकल्प हा जालना जिल्ह्यामध्ये होता। 1000 कोटीचा प्रकल्प जालना जिल्ह्यामध्ये, त्याच्यामध्ये 4 मुख्य योजना होत्या। हे नेट त्यांनी त्या मिनिस्टर कोकाटे साहेबांनी खोटी माहिती म्हणजे सभागृहाला दिली। ऑलरेडी पेपरला बातमी आलेली आहे, हा घोटाळा 2.5 कोटीचा पासून दिला गेला होता। म्हणजे आत्मामध्ये अवजार बँक ते त्याची जवळपास नेट सेट आणि हे कधी मुद्द्यांनी आहे तुम्हाला जे की अशा 4 ठिकाणी वेगळ्या योजना होत्या। त्यामध्ये अवजार बँकेमध्ये एक अवजार बँकेची एक वेगळी हे दिली, त्यांनी आयशा सुद्धा वाटली होती। त्यामध्ये तत्कालीन त्याच्यामध्ये ठिबकचा आहे, त्यांनी 2300 प्रकृत नाही आहे 1153 हे नोंद कितीमध्ये त्यामध्ये ते तुम्हाला प्रत्येक याच्यामध्ये कोणत्या विभागात किती घोटाळा झाला हे अंदाजे तुम्हाला त्याच्या सगळ्याच्या आवश्यकतेने आता पथक नेमलेले 100% चौकशीचे आदेश। नाजरीन, शहर के दीगर इलाकों ही की तरह जटवाड़ा इलाके में भी सड़क का तामीरी काम नहायत सुस्त रफ्तारी से जारी है, जिसकी वजह से यहाँ बार बार ट्रैफिक जाम होने लगा है। नाजरीन, शहर के दीगर रास्तों ही की तरह जटवाड़ा रोड पर भी सड़क का तामीरी काम एक लंबे अरसे से जारी है। यहाँ आधी सड़क का तामीर काम मुकम्मल हो चुका है और बकिया आधी सड़क का काम कछुए की चाल से जारी है, जिसकी वजह से यहाँ बार बार ट्रैफिक जाम होने लगा है और मिनटों का सफ़र तय करने के लिए व्हीकल सवारों को घंटों लगने लगे हैं। साथ ही यहाँ रास्ते के तामीरी काम के लिए डाले गए मटेरियल के सबब धूल की चादर माहौल को आलूदा कर रही है, जिससे मकामी साकिनान सांस और जिल्द की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। लिहाजा मकामी साकिनान और ताजिर मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से ये मुतालबा कर रहे हैं कि सड़क का तामीरी काम जल्द मुकम्मल करवाया जाए। शेंद्रा MIDC इलाके में गांजा फ़रोख्त करने वाले 2 गैर रियासती मुलजिमीन को लोकल क्राइम ब्रांच स्क्वाड ने धर दबोचा और उनके कब्ज़े से 1.5 लाख रुपये मालियत का गांजा जब्त कर लिया।
पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक लोकल क्राइम ब्रांच पुलिस को मुसद्दिक़ा रिपोर्ट मिली थी कि 2 गैर रियासती अफराद शेंद्रा MIDC इलाके में फ्लाई ओवर ब्रिज के करीब ममनुआ गांजा फ़रोख्त कर रहे हैं, जिसकी इत्तला पुलिस महकमे के आला अफसरान को दी गई और फिर सरकारी पंच, फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री और ताल्लुक़ा मजिस्ट्रेट से राब्ता कायम करके इतवार की शब मज़कूरा मकाम पर छापा मारा गया तो क्राइम ब्रांच स्क्वाड ने देखा कि रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला बड़वानी के मज़ाफ़ात झीरी जामड़ी के 2 साकिनीन जिनके नाम डैनियल तुलसीराम कनौजी और राहुल मूलचंद राठौड़ बताए जा रहे हैं, वहां ममनुआ गांजा फ़रोख्त कर रहे थे। पुलिस अमले ने उनकी जामा तलाशी ली तो उनके कब्ज़े से 5 किलो 94 ग्राम का ममनुआ गांजा बरामद हुआ, जिसकी बाज़ार कीमत 1,52,820 रुपये बतलाई गई है, जिस पर दोनों ही मुलज़िमीन को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ करमाड़ पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया गया। ये कार्रवाई रूरल SP डॉक्टर विनय कुमार राठौड़, एडिशनल SP अन्नपूर्णा सिंह की रहनुमाई में लोकल क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर विजय सिंह राजपूत, PSI दीपक पारधे, हेड कांस्टेबल श्रीमंत भालेराव, कासिम शेख, प्रमोद पाटिल, सचिन राठौड़, दीपक सुरोसे, अंगद तिड़के, राहुल गायकवाड़ और शिवाजी मगर ने अंजाम दी। जवाहर नगर पुलिस ने एक खातून मोबाइल चोर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से 25,000 रुपये मालियत का मसरूक़ा मोबाइल हैंडसेट भी बरामद किया गया। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक सब्जी फरोश अविनाश वसंत राव वाहुड़े का मोबाइल फ़ोन शाहनूरवाड़ी इलाके में मौजूद डीमार्ट के सामने भाजी मंडी से चोरी हो गया था, जिसकी शिकायत अविनाश ने जवाहर नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई। पुलिस स्टेशन की हुदूद में पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस अमलदार मारुति गोरे को एक मुखबिर ने ये इत्तला दी कि मोबाइल फ़ोन एक खातून ने चुराया है, जिसके बाद जवाहर नगर पुलिस स्टेशन का अमला हरकत में आ गया और बारीकी से इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी और इस सारे खातून को ढूंढ निकाला। तफ्तीश के लिए उसे हिरासत में ले लिया गया तो उसने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। इस मोबाइल चोर खातून का नाम रेशमा गयास बागबान बताया जा रहा है, जिसके कब्जे से पुलिस ने मसरूक़ा मोबाइल हैंडसेट भी बरामद कर लिया। ये कार्रवाई पुलिस इंस्पेक्टर सचिन कुंभार की रहनुमाई में PSI राहुल बिघाटे, अलका रोकड़े और पुलिस अमलदार मारुति गोरे ने अंजाम दी। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। माहौलियाती आलूदगी पूरी दुनिया के लिए है खतरा, ग्लोबल वार्मिंग को टालने शजरकारी पर दिया जाने लगा है जोर। औरंगाबाद डिवीजन में भी शुरू की गई एक पेड़ माँ के नाम मुहिम, इलाकाई कमिश्नर जितेंद्र पापड़ के हाथों किया गया शानदार इफ्तिताह। DIO की जानिब से सहाफ़ियों के लिए तरबियती वर्कशॉप मुनक़िद, डिवीजनल कमिश्नर और ज़िला कलेक्टर के अलावा दीगर माहिरीन ने सहाफ़ियों के लिए जारी की गई मुख्तलिफ स्कीमा से मुताल्लिक़ की रहनुमाई। अवामी भलाई के लिए इंतज़ामिया और सहाफ़ियों को मिलजुल कर काम करने का दिया गया मशवरा। पैठन रोड पर सड़क की तामीर के लिए खुदाई के दौरान JCB की जद में आ जाने से फिर फूटी 1200 मिलीमीटर कुतर वाली पाइपलाइन। शहरियान के हिस्से का हज़ारों गैलन पानी यूं ही रास्ते पर बहकर हो गया ज़ाये। शहर में सप्लाई मुतासिर होने का इम्कान, शहरियान में बेचैनी। और चड्डी बनियन गैंग के खिलाफ महाविकास आघाड़ी के अराकीन असेंबली व काउंसिल ने किया विधान भवन की सीढ़ियों पर ठिया आंदोलन। लुटेरी गैंग के खिलाफ लगाए जमकर नारे। एक बार फिर लगाया गया 50 खोके एकदम ओके का नारा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।